for developing any VB application, what we need? We need a form first. हमें form चाहिए, right? Now on the form, what we need to place? Controls. Last we had methods for placing the controls on the form. Have you written that? Two methods for placing the controls. First method, simply drag the control onto the form, or you can simply double click on the control will get added to the form. Okay, चाहे तो drag करके ले आओ, चाहे आप double click कर लो. Right? Now this is a form. Form के ऊपर हम क्या place करते हैं? Control. For example, I am writing here first name, last name, so all these are the controls. This is label, this is button, this is text box. Okay, so for developing any application, first step is to design a form. According to the requirement of your application, you will design the form and you will place the controls on the form. This is the front end part, the designing part. Coding part is the back end part. Coding का कहाँ पे करेंगे? Back end पे. Now, how to do the coding? The coding is to be done in the code window. So this is the component of VB interface. Code window is component, right? How to open this code window now? Always the coding will be done on the event. I told you this thing also. Coding किस पे होगी? Event पे. Event किस पे लगेगा? Button पे. Event किस पे लगेगा? Button पे. So you will double click on this. यहाँ पे आप double click करेंगे. Double click करने पे you will get the code window. Okay. You will double click on a control called button. Upon double clicking that, you will get the code window. Whatever the coding is to be done, that is to be done in the code window. Now inside the code window, you will get the lines of coding, जो by default पहले से ही आएंगी. Public sub, ये लिखा हुआ आपके पास पहले से ही कोड आएगा. Public sub. अब आपने कोडिंग किसने करी है? किसको डबल क्लिक किया था? बटन को. दिस इज बटन. इट विल बी बटन. पब्लिक सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक. अगर तो आप सिंगल क्लिक पे लगा रहे हो कोडिंग तो क्लिक का आएगा. अगर आप डबल क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे डबल क्लिक आएगा. बटन 1 क्यों है? इस पूरे फॉर्म पे अभी तक एक ही बटन पड़ा है, उसका बाय डिफॉल्ट नेम आता है बटन 1. ओके, सो हियर इट विल बी ब्रैकेट एंड लास्ट में आएगा एंड सब. दिस कोडिंग विल बी अवेलेबल इन द कोड व्यू. नाउ व्हाटएवर द कोडिंग यू पीपल हैव टू डू, हमने इसके अंदर कोडिंग करनी है. You will not erase these two lines. Whatever the coding is to be done, this is to be done inside this private sub function. अब आपका जो मेन मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, यहाँ पे कई बार लिखा आता है form 1 अंडरस्कोर load. हमने form load पे कोडिंग नहीं करनी. अदरवाइज क्या होता है, बच्चे यहाँ पे कोडिंग करते हैं, इसको क्लिक कर ही जाएंगे. मैम क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन रन नहीं हो रहा. वो क्लिक तो आप बटन को कर रहे हो ना, कोडिंग आप फॉर्म पे लगा रहे हो. तो जिस कोडिंग लगा रहे हो वही चीज क्लिक करनी है. अगर फॉर्म लोड लगा तो फिर फॉर्म लोड में अपने आप चल जाएगा. हमने कोडिंग बटन पे किया तो दैट्स व्हाई हियर इट विल बी बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक और डबल क्लिक. एनी डाउट? कोड विंडो का कांसेप्ट क्लियर हो गया? दिस थिंग इज क्लियर. नाउ हाउ टू डू द कोडिंग. ये जो आपके पास फॉर्म है, दिस कंट्रोल इज कॉल्ड लेबल.
ये फर्स्ट लेवल है, ठीक है। अब मतलब मैं अज्यूम करी हूँ मैंने इसको पहले प्लेस किया था फॉर्म के ऊपर, तो जो इसका बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा होगा दैट विल बी लेबल 1, दिस इज लेबल 2, दिस इज text box 1 dot text, this is text box 2 dot text, इसका नेम आ रहा है बटन 1। अभी आप इसको डॉट टेक्स्ट को छोड़ो, ये प्रॉपर्टी है इसको मैं बाद में रखती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, बटन 1, लेबल 1, लेबल 2। एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? दिस इज क्लियर? यस। यहाँ पे मैं कुछ और लेबल ऐड कर दूंगी तो उसका क्या नेम आ जाएगा? लेबल 3। अब जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था राइट साइड में यहाँ पे हर कंट्रोल के रिलेटेड properties आती हैं। There are certain properties related to the control. Now every control is having different properties related with it. Whatever the control you are going to select in the toolbox, the properties of that selected control will be appearing here. Okay. Now let's look at that. तो अंडरलाइन करो पेज 88 पे, डेवलपिंग अ वीबी एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या स्टेप रहेगा? यू विल क्रिएट अ फॉर्म। आफ्टर क्रिएटिंग अ फॉर्म यू विल place the controls on the form, then you will set the properties of the control, and then you will write a coding in the code window. The steps are clear for developing any application. How to develop an application? Firstly, we will create a form by placing some controls, then we will set the properties for the control, and then we will write the code. Okay. Now creating a form, ये आपको सारे steps दिए, ये मैं आपको practically बताऊंगी। How to add controls to the form, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। Return 2 methods for placing the control, ठीक है, ये उसमें आ जाएगा। Click on the desired control in the toolbox, the pointer will change, the control will be placed on the form. Now see here, अभी इस एग्जांपल में इन्होंने बस एक लेबल को यहाँ पे लगाया, एक लेबल को इन्होंने यहाँ पे ड्रैग करके लगाया। अब लेबल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसको प्लेस किया है। So once you have placed any control, the properties of that particular control will be appear. अब यहाँ पे देखो इसकी properties appear हो गई, ये नीचे देखो। These are the properties. Now let's discuss the properties. How to set the properties? Again, question here. How to set properties? Select the control. Click on the desired property in the properties window. Set the property. Okay. Click on the control whose properties you want to set and select the properties related to the whatever the control you have selected. अब देखो जब आप लेबल सिलेक्ट करोगे तो लेबल की क्या प्रॉपर्टीज आ रही हैं? नेम, नेम प्रॉपर्टी विल आइडेंटिफाई द लेबल व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। फॉन्ट, अगर आपको अपने लेबल का, जैसे मैंने फर्स्ट नेम दिया तो आप चाहते हो फर्स्ट नेम बोल्ड आए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसके सराउंडिंग में कोई बॉर्डर लाइन आए, उसके बैकग्राउंड का कलर कुछ और हो, टेक्स्ट का कलर कुछ और हो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप फॉन्ट से चेंज करोगे। फॉर कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। फॉन्ट मीन्स फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फेस, फॉन्ट का स्टाइल। ओके। टेक्स्ट, जो चीज यहाँ पे अपीयर हो रही है, जब आप इसको ड्रैग करते हो तो यहाँ पे आते हैं लेबल 1, बट आपको क्या क्लियर करना है? फर्स्ट नेम। तो आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। विच प्रॉपर्टीज टू बी सेट? टेक्स्ट प्रॉपर्टी। विजिबल, आप इस फील्ड को विजिबल रखना चाहते हैं या हिडन बनाना चाहते हैं, सो दिस प्रॉपर्टी यू कैन सेट एज यस और नो। विजिबल रखना है तो यस, विजिबल नहीं रखना है तो नो। नाउ द मेन टू प्रॉपर्टीज, name and text. Name property हम यूज करते हैं जब हमें कोडिंग करनी है, at the time of coding. Okay. Text property will have effect at the front end, क्योंकि यहाँ पे आ रहा होगा लेबल 1, तो उस लेबल का टेक्स्ट आप प्रॉपर्टीज में जाके लिख दोगे तो
फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1, बट हमें नहीं शो करना है, हमें तो खाली बॉक्स चाहिए। तो फिर टेक्स्ट बॉक्स की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, तभी वो एम्प्टी फील्ड शो होगा। गेटिंग द डिफरेंस? अगर हम लेबल का टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे तो whatever the thing or whatever the text we will write inside this property, the property window, that text will appear here. Text box will also be a text, but we want it as an empty text box, so we will left this as blank. Similarly, button की भी text property हम सेट करेंगे और text property button की जाके हम क्या लिखेंगे? सब, but we will write तो whatever the control जिसका भी आपको नेम चेंज करना है वो नेम कहाँ से इफेक्ट आएगा? टेक्स्ट। अब ये नहीं सोचना कि हम नेम चेंज करें तो नेम प्रॉपर्टी चेंज करें। नेम इज फॉर द कोडिंग सेक्शन, नॉट फॉर द फ्रंट एंड। ओके, टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टू बी सेट व्हेन वी वांट, बट टेक्स्ट वी वांट टू अपीयर एट द फ्रंट एंड। फॉर्म पे क्या दिखाई दे तो वो कहाँ पे सेट करेंगे? टेक्स्ट। तो यू कैन इजीली जज नाउ हर कंट्रोल की ये दो प्रॉपर्टीज तो कॉमन ही। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए लेबल की प्रॉपर्टीज बताओ, बटन की प्रॉपर्टीज बताओ, तो वो प्रॉपर्टीज तो कॉमन ही है, कॉमन है। नेम भी हर कंट्रोल की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट भी हर कंट्रोल की प्रॉपर्टी। सिमिलरली फॉर कलर, बैक कलर, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट भी आप हर किसी का चेंज करोगे। फॉर कलर यू कैन सेट टेक्स्ट कलर चेंज करना है, अगर बैकग्राउंड कलर देगा तो बैक कलर प्रॉपर्टीज है। So these are the properties which are in common for all the controls. All right. Now next is the text box. Text box is used to receive the input from the user. जब आपको यूजर से इनपुट लेनी है। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, नेम आपको मैंने बता दिया, टेक्स्ट, फॉन्ट, लॉग। लॉग मींस जब आपने अपना यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स प्लेस किया हुआ है, वेदर वी कैन एबल टू मूव और रीसाइज इट। अगर आप लॉक कर दोगे तो जो आपने फील्ड सेट किया उतना ही साइज आपको विजिबल रहेगा यूजर को, जिसको भी आप एप्लीकेशन दे रहे हो। लेकिन अगर आपने लॉक इनेबल नहीं किया है तो दैट पर्सन हु इज एबल टू यूज दिस एप्लीकेशन कैन ड्रैग दिस फील्ड एनीवेयर, कैन रीसाइज इट, कैन मूव इट। So that depends upon the lock property whether you want to lock it or not. Okay. Maximum length. इस फील्ड में यूजर कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स he or she can enter. So you can set the length of the characters that can be entered in this field. आपको कितने कैरेक्टर्स एंटर करने? अगर आपने 15 कैरेक्टर्स की लेंथ दी हुई है तो 15 से कम जरूर एंटर कर सकते हो, लेकिन 16 कैरेक्टर वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ओके, मल्टी लाइन। नाउ टेक्स्ट बॉक्सेस आर ऑफ टू टाइप, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। जो बाय डिफॉल्ट होता है वो सिंगल लाइन है कि आपके पास जितना भी कंटेंट है एक लाइन में लिखेगा। So there will be some restrictions, but if you want to enter some huge amount of data, आपका कंटेंट ऐसे मल्टी लाइन में जाए, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को इनेबल करोगे तो आपका टेक्स्ट मल्टी लाइंस में फ्लो करेगा। ओके, सो फॉर दिस यू हैव टू सेट द मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। हाँ, सो नेक्स्ट इज द कमांड बटन। कमांड बटन इस बटन को बोला गया है जिसको आप क्लिक करोगे जिससे इवेंट जनरेट होगा। सो नेम, टेक्स्ट एंड फॉन्ट। Clear? Any doubt in the properties to anyone? Anyone? नेम प्रॉपर्टी हम कोडिंग में यूज करेंगे। जब कोडिंग में हम किसी चीज को रेफर करते हैं तो हम उसका नेम उठाते हैं। ठीक है, आपके फॉर्म का अपना नेम होगा, लेबल का कुछ और नेम होगा। दैट हाँ, अब जैसे कोडिंग में जब आप यूज करोगे, कोडिंग जब आप इसकी लिखोगे तो अज्यूम कर रही हूँ मैंने इसका नेम टेक्स्ट बॉक्स ही रखा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 ही रखा है। ठीक है, ये जो बाय डिफॉल्ट जो आ रहे थे ये टेक्स्ट बॉक्स 1 आ रहा होगा। आप इसको चेंज कर सकते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। अब यहाँ पे तो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है, इट इज वेरी सिंपल टू जज। हियर कैन बी पॉसिबिलिटी कि एक फॉर्म पे नियर अबाउट 20 टेक्स्ट बॉक्सेस आर देयर। तो आपको कैसे पता चलेगा फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, लास्ट नेम का कौन सा है? क्योंकि आपने जब प्लेस किया आपने इकट्ठे कितने सारे प्लेस कर दिए। हो सकता है जब मैंने प्लेसमेंट रखी यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स 3 आ रहा है और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 है। तो अगर कोडिंग के टाइम पे मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 में फर्स्ट नेम की वैल्यू स्टोर कर दूंगी तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग
कोडिंग करेंगे फिर द फर्स्ट नेम वर्ड को रेफर करूंगी, टेक्स्ट बॉक्स को भी रेफर करूंगी, अदरवाइज तो मेरी कोडिंग की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑलराइट, so writing a code for an event, simple example दी हुई है इन्होंने। कम ऑन टू द पेज नंबर 90। ओके, पहले मैं आपको 89 से बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये बोर्ड पे बताती हूँ। सो देयर इज वन बटन जहां पे उन्होंने डाला हुआ है लेबल 1.text इक्वल टू वेलकम टू विजुअल बेसिक 2010। इसका जो इंटरफेस है देयर इज वन बटन जिसका नेम क्या सेट हुआ है, डिस्प्ले। जब आप ये फॉर्म बनाओगे तो आपने यहाँ पे एक लेबल लिया होगा, उसका नेम क्या आ रहा है, लेबल 1, लेबल 1। लेकिन जब आप इसकी प्रॉपर्टी विंडो में प्रॉपर्टी सेट करोगे इस लेबल की, तो इसके नेम में आ रहा है लेबल 1, ओके। और इसके टेक्स्ट में इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी विंडो में, आई विल लेफ्ट इट एज ब्लैंक, इसको ब्लैंक छोड़ूंगी क्योंकि मेरे को ये शो नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट डाल दूंगी तो ये लेबल 1 यहाँ पे शो हो रहा है, बट आई डोंट वांट टू शो। बट ये लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ है, बट मैं इसको शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी प्रेजेंटली इसकी वैल्यू, टेक्स्ट की वैल्यू ब्लैंक छोड़ी। अगर आप टेक्स्ट में कुछ लिख दोगे तो वो वहां पे बाय डिफॉल्ट लेबल 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने अभी उसको इरेज करना है तो मैंने टेक्स्ट की वैल्यू खाली छोड़ दी। नेक्स्ट इज द बटन। जब बटन की प्रॉपर्टी सेट करोगे तो इसके नेम में आ रहा होगा बटन 1, ओके। और इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं डिस्प्ले शो करना चाहती हूँ, तो ये मैंने खुद ही यहाँ पे मैन्युअली सेट किया है, डिस्प्ले। This is the text property, that's why the display word is appearing here. यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी खाली छोड़िए, इसलिए यहाँ पे कुछ अपीयर नहीं हो रहा। ये दोनों चीजें कोडिंग में यूज होंगी, मतलब नेम प्रॉपर्टी कहाँ यूज होनी है, कोडिंग में। because that is clear now coming on to the coding part। अब इस पे मुझे कोडिंग करनी है कि जब इस पे मैं क्लिक करूं, इस पे मैं सिंगल क्लिक करूं तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अपीयर हो। टेक्स्ट कहाँ अपीयर होगा, मैं इसको क्लिक करूं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अपीयर हो जाए। टेक्स्ट तभी अपीयर होगा अगर हमने लेबल लिया होगा, इसीलिए मैंने लेबल लिया, लेकिन मैंने इसको प्रेजेंटली खाली छोड़ दिया। अगर मैंने पहले ही टेक्स्ट दे दिया तो पहले ही दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन क्या बना, फिर एप्लीकेशन क्या बनी, अगर पहले शो हो जाएगा। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आई विल क्लिक ऑन अ बटन, अपॉन क्लिकिंग इट विल जनरेट सम टेक्स्ट। ये इवेंट हो गया, इसको मैं क्लिक कर रही हूँ, इसकी क्लिक करने पे कुछ हो रहा है, कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, ओके। सो दैट्स व्हाई प्रेजेंट हम पहले टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नल शो करेंगे। कोडिंग हम करेंगे कि जब ये क्लिक हो उसके बाद इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट हो जाए। जब हम इस पे क्लिक करें, क्लिक करने पे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, जब कुछ टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। तो ये कोडिंग हमने करनी है। कोडिंग किस पे करनी है, डिस्प्ले। कोडिंग किस पे करेंगे, डिस्प्ले पे। तो आपके पास यहाँ पे कोडिंग, आप डबल क्लिक करोगे, इसको डबल क्लिक करके क्या आ रहा होगा, पब्लिक सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। अब ये जो बटन 1 आ रहा है ना, यहाँ से आ नेम, नेम कहाँ पे यूज होगा, कोडिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नेम चेंज कर दोगे फिर वही नेम यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा, तो भी हम नेम्स के अंदर सेट करेंगे, इसलिए हम नेम में कम से कम चेंजेस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा होगा, एंड अब कोडिंग क्या करनी है, देन व्हेनेवर आई विल क्लिक ऑन दिस, तो क्लिक होने पे क्या आ जाए, लेबल 1 का टेक्स्ट शो। कंट्रोल कौन सा था यहाँ पे पड़ा, लेबल 1। कौन सी प्रॉपर्टी है मुझे कोडिंग के टाइम पे सेट करनी है,
आई वांट इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने खाली छोड़ी है वो इसके थ्रू टेक्स्ट आ जाए। एक तो देखो प्रॉपर्टी सेट करने का वे कि आप डिजाइन टाइम में प्रॉपर्टी विंडो पे करो। अब प्रॉपर्टी विंडो की बजाय मैं चाहती थी कोडिंग से मुझे प्रॉपर्टी सेट करनी है, लेकिन प्रॉपर्टी तो टेक्स्ट ही रह रही है ना। तो इसकी मैं कह रही हूँ लेवल 1 की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर कुछ कंटेंट आ है। लेट्स से लेवल 1 का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने रिपोर्ट में खाली छोड़ा है, क्लिक करने पे लेवल 1 का टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आ गए। What my point? So I will click on this. सडनली जब मैं इस पे क्लिक करूंगी इमीडिएटली यहाँ पे हेलो प्रिंट हो। अब हेलो किस कलर में प्रिंट हो? हेलो का क्या बैक कलर रहे, हेलो का क्या फॉन्ट रहे, उसके लिए लेवल 1 की प्रॉपर्टीज आपको पहले से सेट करनी है। जैसे लेवल 1 का फॉन्ट सेट कर दो, फॉल कलर सेट कर दो, बैक कलर सेट कर दो। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज आपने टेक्स्ट के रिलेटेड लगाई होंगी लेवल के लिए, तो जब लेवल में कंटेंट शो हुआ उसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे। एनी डाउट? अभी भी नहीं आया? आई विल एक्सप्लेन द होल एप्लीकेशन अगेन, बट लेट मी जेन्युइनली, सिर्फ ऐसे हेड नोट नहीं करो। नहीं आया तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, अदरवाइज आगे कुछ नहीं समझ आएगा। ये भी सिंपल, सबसे सिंपल पहला स्टेप बताया कोडिंग में। अब मैम टेक्स्ट के आगे लिख देना, जैसे लेवल 1 टेक्स्ट के आगे लिख देना हेलो, but it should be in the double quotes क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। हम लेवल डॉट टेक्स्ट आपने लिखा ना, लेवल डॉट टेक्स्ट उनको उसने लिखा क्योंकि मुझे लेवल 1 का टेक्स्ट सेट करना है। किसका टेक्स्ट सेट करना है? किसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी? मुझे बटन की थोड़ा करनी है, मुझे लेवल 1 की करनी है। तभी तो मैंने पहले यहाँ पे लेवल 1 को ड्रैग करके रखा, ड्रैग करके उसकी मैंने टेक्स्ट वैल्यू खाली छोड़ दी, वो दिखना बंद हो गया। लेकिन क्लिक होने में वो दिखे तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी फिर से सेट करनी पड़ेगी मुझे कोडिंग के थ्रू। तो कोडिंग के थ्रू कैसे सेट करते हैं? कंट्रोल का नेम डॉट प्रॉपर्टी, ये सिंटैक्स है फॉर सेटिंग। कंट्रोल नेम dot property, whatever the property you want to set and equivalent to whatever the value you want to put. लेवल 1 के नीचे जो टेक्स्ट वगैरह सारे नीचे लिख रहा हूं, नेम के नीचे लिख रहा हूं। वो प्रॉपर्टी विंडो है, दैट इज सेपरेट थिंग। उसके साथ में देखनी है, उस प्रॉपर्टी विंडो में सेट कर दो। ये कोडिंग के थ्रू करो। तो फिर जब डबल क्लिक लगाओगे तो यहाँ पे वर्ड आएगा अंडरस्कोर डबल। हमने प्रोग्राम डेवलप किया ना, हम जब अपनी एप्लीकेशन किसी को सोल्ड आउट करेंगे तो हम नॉर्मली बटन पे क्या करते हैं? क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं। अदरवाइज अगर आप माउस मूव रख दोगे, माउस ओवर रख दोगे, तो यू विल लेट द कस्टमर्स नो कि आपने अपनी एप्लीकेशन में बटन की किस इवेंट पे कोडिंग की। ठीक है, एनी डाउट ना? बोलो, क्लियर है? सो दिस वाज एप्लीकेशन दैट वाज गिवन ऑन पेज नंबर 89। अब आपकी बुक में सम ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी नहीं मैं करवा रही, इसके पहले मैं एक और करवा रही हूँ। कोडिंग करो उसकी साइड बाय साइड एंड ड्रॉ नोटबुक में करो।
Draw this form. What is this? What is this? Table 1. Okay. This is यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया हुआ है, टेबल 4. हाँ, इससे text box 2. Button 1. Now you have to create an application. When you will click on the show button, your name will appear here. Full name, first name and last name. Your name will appear here. Can you able to do the coding for it? Anyone of you? Yes, anyone? सबसे पहले देखो लेवल 1 की टेक्स्ट में प्रॉपर्टी विंडो क्या क्या चेंजेस आए हैं. लेवल 1 की प्रॉपर्टी विंडो में आपने यहाँ पे डाला है टेक्स्ट के अंदर फर्स्ट नेम. लेवल 2 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपने डाला लास्ट नेम. लेवल 3 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपने डाला माय नेम. लेवल 4 का टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने लेवल 4 का टेक्स्ट प्रॉपर्टी ब्लैंक. ओके, यहाँ तक क्लियर. अब आप इस पे क्लिक करोगे, जब आपने जब इस पे डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करके क्या ओपन होगा, कोड विंडो. ओके, नाउ इनसाइड द कोड विंडो यहाँ पे आ रहा होगा. इसको कर दो रेस में इधर कर दो, इधर पब्लिक सब आपने बटन ध्यान से कोडिंग करी है. बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक. ओके, अब सबसे पहले आपको ये टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी. टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी यूजर ने एंटर किया उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे. मैथ्स में अगर हम कहते हैं कि हमने a की वैल्यू 10 सेट करनी है तो इस तरह से करते हो. a इज वेरिएबल, 10 is a value and value is to be assigned to a variable. So variable should be on the left side. तभी वैल्यू असाइन होती है. ये रूल है ना. सेम में आपने सपोज करो यहाँ पे कुछ नेम डाला. ओके, ये नेम भी तो किसी वेरिएबल में जाना चाहिए क्योंकि ये लेवल 1 को बिलोंग कर रहा है. जो भी आप डाल रहे हो इसके अंदर ये वैल्यू सेट होनी चाहिए. यस और नो. तो लेवल ये आपका क्या है, लेवल 1. ओके, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक वेरिएबल ले लोगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ही ले लिया. लेट्स सी दिस इज जस्ट एन असम्पशन, यू कैन टेक इट ऑन योर ओन. ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1. अगर यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाला तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, टेक्स्ट. टेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई ना. हम कह रहे हैं जो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट में डाला गया है वो किसमें असाइन हो जाए, ए. What my point? Similarly, I am saying जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में एंटर होगा उसका जो टेक्स्ट आ रहा है वो किसको असाइन हो जाए, बी. ओके, एंड इन द थर्ड वेरिएबल you are joining them. So for joining the strings we are having one operator that is plus. तो आप क्या करोगे, a plus a में क्या आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 का कंटेंट. b में क्या आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 2 का कंटेंट. ओके, अब आउटपुट आपने किस पे लेनी थी, लेवल 4 पे. लेवल 4 कहाँ पे शो होगा, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी उसकी, टेक्स्ट. क्योंकि हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करना है जैसे हमने डिस्प्ले वाले में किया था. सेम लेवल 1 डॉट टेक्स्ट किया ना. अभी प्रेजेंटली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लेवल 4 बन गया.
तो लेबल 4 डॉट टेक्स्ट, किसकी वैल्यू लेबल 4 डॉट टेक्स्ट में डालनी है हमने? सी की, जहां पे ज्वाइनिंग थी सी की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। पहले आप ये डालोगे, फिर ये डालोगे, इस पे क्लिक करोगे, इसको क्लिक करने पे इन दोनों की ज्वाइनिंग होके यहाँ पे लेवल 4 में डिस्प्ले होगी। अब इस क्वेश्चन से होगा क्या, जब आपने ये वैल्यू क्लिक करके डाली तो वो सपोज करो मैंने यहाँ पे डाला रेक्स, यहाँ पे मैंने डाला रोवा, तो इट विल शो इट लाइक दिस विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी स्पेस, क्योंकि ज्वाइन हो रहा है। तो अगर आपको स्पेस देनी है तो व्हाट यू कैन डू है ए प्लस एक स्पेस दे दो, देन तो फिर दोनों में क्या आ जाएगा, एक गैप आ जाएगा। बट जब भी कोई स्पेस देनी है, टेक्स्ट देनी है, इट शुड बी रिटन इन द डबल कोट्स। क्लियर? द एप्लीकेशन इज क्लियर? एनी डाउट? आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ए भी मतलब इसका मैं शॉर्टर वर्जन यहाँ पे लिखूंगा। अगर आप वैल्यू को फाइंड नहीं करते, आपने ए और बी वेरिएबल नहीं लिया, सिंपली आप ले रहे हो लेबल 4 डॉट टेक्स्ट में क्या साइन होना था, सी की वैल्यू, सी में क्या पड़ा है ए और बी की वैल्यू, तो उसको अवॉइड कर दो, डायरेक्टली आपका एक्सपेक्ट बन जाएगा। तो आप क्या डालोगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट बॉक्स। इसमें क्या हुआ है, मैंने एक स्टेप रिड्यूस करके यहाँ पे पहले मैंने ए और बी में वैल्यू को शिफ्ट किया था, फिर मैंने उसको ऐड किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू को किसी वेरिएबल में नहीं असाइन किया, मैंने सीधा उसको डायरेक्टली यूज कर दिया। बट है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वो ले रहे हो तो पहले हमें ए बी को डिक्लेयर भी करना पड़ता है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। सो दिस वे यू हैव टू डू द कोड। एनी डाउट? दोनों एप्लीकेशंस क्लियर हैं? श्योर? प्रॉब्लम बच्चे हमने प्रॉपर्टी सेट करनी है प्रॉपर्टी विंडो में, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ पीवी। राइट साइड पे प्रॉपर्टीज आती है, आपने वहां से प्रॉपर्टीज को सेट करना है। ओके